वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा। ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਕਰਾ ਟਿਪੀਕਲ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਨੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਕਿਉਂ ਅਬੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਲਬੇਲਾ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਧੇ ਹੋਣੇ। फिर शेरशाह सूरी आए शेर शाह सूरी लगता साड़ा ताता च आया। अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, शो का आगाज करते हैं बाबर हाउस से। वालेकुम सलाम। फुर्सत मिल गई आपको राणा साहब? ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੇ। नहीं फिर कोई शादी रख ली है? ਭਾਜੀ ਵੱਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਟੁਰ ਪਿਆ ਇਸ ਘਰ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਆਸਤ ਉੱਥੇ ਆਪ ਵੜਨ ਦੀ ਜੇ। ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੱਸੀ ਰਾਣਾ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ना वो राणा है, ना बाबर है, ना साहब है। ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਾਊਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਕਾਬਲ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਲੋ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਏ 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 सीरियसली? ले सीरियसली बढ़िया टिकटा भाजी की गल पे कर रहे हो? किस पार्टी से? ले किस पार्टी से? जिन्हें जितना बेटे और किस पार्टी से? पीटीआई से। ਆ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਧੂੜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਪੁੱਤਰ। हैं? फिर कौन सी पार्टी ने जीतना है? ਆ पीडीएम ने जितना है और किन्ने जितना है? किस वजह से? ले किस वजह से? जिस वजह से नियाजी जीता था पिछली दफा। बड़ी गहरी बातें कर रहा है। मैं हुण थल्ले तक जा लग गया, पहले मैं उत्ते उत्ते तरदा सी, हुण जरा डूंगे। ਇਹ ਤਾਰੂ ਏ ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਗੰਡੋਏ ਦਾ ਬੱਚਾ। नहीं यार सीरियसली बताओ, वाकई इलेक्शन लड़ रहे हो? ਓਏ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। 1.5 करोड़ किस चीज में? ਉਹ ਭਾਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। पीडीएम की तरफ से? ਹਾਂਜੀ, तो पीडीएम तो लड़ ही नहीं रही, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। तो तुम्हें क्या निशान मिला? ਢੋਲਕੀ। वाह वाह। आपको शर्म ना आएगी कि ढोलकी बजा रहा है वो? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। हाँ जी। ਢੋਲਕੀ ਸਾਡਾ ਲੱਕੀ ਸਾਇਨ ਹੈਗਾ। ਆ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਢੋਲਕੀ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਦਿਲ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। अच्छा। ਬਾਬਰ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਚੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ओहो। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਦੋ ਕੁ ਕਾਲੇ ਡਾਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। नहीं तो क्यों, उनका क्या मसला है काले डालों वाला? ਲੈ ਮਸਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਡਾਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ। मारा फिर? ਲੈ ਮਾਰਾ ਜੂਤ ਫੇੜਦੇ ਗਏ ਬਾਈ ਰੋਡ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ। ओहो, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਮਸਕੀਨ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। इन दोनों में बुलबुल कौन है? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੋਲ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ। ਉਹ ਐਡਾ ਐਡਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ। ਹਾਂ ਲੈ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਔਂਤਰਾ। नहीं वो तुम्हें पीटीआई का समझ रहे थे? ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। फिर ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਕ ਵਾਂਗੂ ਟੁਰ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ। वो कैसे टुरते ਐ हैं? ਢਿੱਡ ਕੱਢ ਗਏ। हुआ क्या फिर? ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੀਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ, ਤੂਤੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਅਨਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਅਨਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਦੇ। ਜੇ 5-4 ਇਕੱਠੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਭਾਵੇਂ। 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਫਤਾਬ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਾਖਲਾ? दाखला। ਹਾਏ ਬਸ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰੇ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। पहले भी आपके शहर का ही है वजीर दाखला? अच्छा बड़ी सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं।
ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸ਼ਕਰੀਰਾਂ ਲਿਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं ऐसे नहीं तकरीरें शकरीरें लिखता। ਲਓ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਤੇ ਸਪੀਚ ਰੈਟਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। किधर बेनजीर किधर तुम लोग। ਰਾਣਾ ਬਾਬਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। वाह वाह ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਭਟੋ ਭਟੋ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਭੁੱਟੋ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਵੜ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਵੜ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁਕਿਆ ਬਈ। ਆਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਵਾਨੀ ਚ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਪਰਿੰਦਾ ਠਾਹ ਡਿੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ, ਪਰਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀ। ਅੰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਵੱਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਇੰਨੇ ਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ, ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਛੋ ਏਡੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੂੰ ਮਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਦਸ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਨੀਆਂ ਸੌਂ ਜਾਣ। मुर्गाबी। ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਰਗਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਘੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। हाँ इसी तरह बैठना पड़ता। ਮੈਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐਟਮਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ। सलामकुम। वालेकुम, क्या हाल है। बस ठीक है सर। सर आपने ये देखा है कितना डिसेंट सलाम अलैकुम। छोटा सा शॉर्ट सर था। चपेड़ा वजियां ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। यार क्यों आपको क्यों मारा, चपेड़े चपेड़े क्यों मारी हैं। ਐਸਾ ਹੀ ਸੁਰ ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੇ। बाबर ऐसे भी क्या मार पड़ गई आपको? आप उस पार्टी को नहीं सपोर्ट करें बस। ਅਗਲੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਦੋ ਕੋ ਸੁਣ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ। मैं पीटीआई ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें किस बिना पे मारा। सिर्फ इसलिए कि तुम पीटीआई से इलेक्शन लड़ रहे थे, पूरी दुनिया लड़ रही है। सर उन्होंने इसको अजीब बात कही है, मैं तो हैरान रह गई। अच्छा वो अजीब बात क्या है। सर वो कह रहे हैं कि तुम जो यहाँ देखते देखते इतने अमीर हुए ना, ये हमारी वजह से हुए, हमने तुम्हारी हेल्प की है। वो कह रहे थे इन्हें बहुत सारे परमिट लेके दिए, बहुत सारी गाड़ियाँ क्लियर करवा के दी। गाड़ियां क्लियर क्या मतलब। सारे कस्टम ਦਾ ਰੌਲਾ नहीं ਹੁੰਦਾ छोटा मोटा। ओहो तुम्हारी किसी के साथ भाईवाली होगी ना, पार्टनरशिप होगी, बस यही होता है। जी सर। सारी जिंदगी ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। मुझे सारी तफसील बताओ। ਭਾਜੀ ਬਖਤਰ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਜੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਛਾਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੇਟ ਭੰਨੇ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਬਖਤਰ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ ਗੇਟ ਭੰਨਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। पुन्नू कहाँ? ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਡਮ ਇਧਰ ਭੈਣ ਵੀ ਖੜੇ। ਜੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਹੀ ਗਵਾਤੀ ਇਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਉੱਥੇ ਯਾਰ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੇ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ, ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਉੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਖੂਫੀਆ ਵਾਲੇ ਸਹੀ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। कौन से खुफिया वाले कौन से। ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਆਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬ। ਆਈ ਵੀ आई इंटेलिजेंस ब्यूरो। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ KFC ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ 버ਗਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੂਡ ਪਾਂਡੇ ਕੋ ਡਰ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਐਫਆਈ ਏਜੰਸੀ और क्या, ਇਹਦੇ ਕੋ ਵੀ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। बहुत ज्यादा डरना चाहिए। ਹਰਾਮ ਮਗਜ਼ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਰਾਮ ਮਗਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਪੁੰਨੂ ਬੇਟਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੈਸਟ ਮੇਰੇ ਸੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ बहनोई राणा करामत साहब आ रहे ने। ओए राणा करामत साहब, वो और उसकी बीवी गायब है बड़ी देर से। ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜਵਾਈ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕੀ ਮਤ ਵੱਜੀ ਏ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿ ਹੋਰੇ ਬਣ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰੇ ਦਾਖਲਾ। ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਜੀ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਬ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। यार वैसे वो बहुत ही लालची है तुम्हारा ये जो बहनोई है ना। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। नहीं, पहले तो आपके बहुत फेवरेट थे। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਵਜੂਵਾਤ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ। ਓਏ 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 ਬਸ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਟਿੰਡ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਲਾਂਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ तो ਮੇਰੀ क्या है वो ठीक ही तो कह रहा है, पहले वो नहीं था। अच्छा वो कनाडा चले गए दोस्त। ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ हमारे वो प्रमोटर है ना कनाडा। अच्छा उसका नाम नासिर शाह भी था। कल भी जाके तैयारी कर नजारा। ਰਾਣਾ ਬਾਬਰ लाओ आ गए। भाईजान आ गए। ਰਾਣਾ ਬਾਬਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਰ। बस करामत अली ਮੇਰਾ ਬਾਬਰ ਸ਼ੇਰ मैं कहा सदके जावा ਲਾੜਾ सुभान अल्लाह। क्या बात है की छाल मारी है मैं सियासत। कहा क्या करने लाही खैर पागल हो गए। मैं कहा वोट ले ही जाने ने। मैं कह जिਉਂਦਾ ਰਹੋ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। मैं कहा मैं सदके जावा। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। तौबा 63 साल ਦਾ ਬਦਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਸਮਾਨ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਲੋਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਠ ਲਈ ਆਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਯੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਜਿੱਤ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਬੈਕਅਪ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ। आइए ना, आप सब बैठिए प्लीज। आ जाओ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੰਮੀ ਜੀ बेहतरीन, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅੱਬੂ ਜੀ बेहतरीन। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੁਨੂ ਜੀ ਸਰ। ਬਾਹਰ ਆਓ। ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਓਏ ਆ ਵੀ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਹਾਲੇ? ਬੜਾ ਲਿਸੇ ਕੁੱਕੜ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣ ਵਿਆਹਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨਾ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨਾ? ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਆਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਬੈਕਅਪ। ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਾਓ ਸਿਮਨ। ਐ ਸਿਮਨ ਆਓ। ਲੈ ਹੁਣ ਕਰ। ਹੈਲੋ ਆ ਸਿਮਨ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? सीमा की कॉल है, मेरी सीमा! बात करवाइएगा प्लीज। हेलो मेरी बात। मैं कल कट गया ओए होए। तू सिग्नल का बड़ा मसला है। था उत्थे ना मौसम ठंडा होंदा ना, विंड चिल चल रही होंदी है और सिग्नल सुंगड़ जाता, पता जी? एडा बड़ा सिग्नल एडा ही रह जांदा, आवाज नहीं आती। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੈਸੀ ਗੱਲ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੀਮਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂ। ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਬੋਰ ਹੈਗੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तुम्हारा चाक किसको हो सकता है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੀ। होता तो वो कनाडा जाती। अपनी की गल हो रही है? ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ, किनू? ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। वो कौन? ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਕੌਣ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, नासिर शाह। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। नासिर शाह यार नासिर शाह मेरा यार है, मेरा दोस्त है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। नासिर शाह नाल उन्नी दे ਉਹਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਬੜੀ ਸਖਤ में मिले। आओ फिर खाना खाइए। किरण जी अंदर ले जाओ, इन्हें खाना वगैरह खाओ। जी। आ जाओ। वैसे करामा साहब, हाँ जी, इलाके के मोअज़्ज़ीन आ रहे हैं कुछ। लागे तो मोहसिन, आज उन्होंने फुल मीटिंग है मेरी, जिन्हें मेरे नाल जाके वोट मंगणगे। बड़ी अच्छी गल है। बिस्मिल्लाह करा, करामत पुत्र आया है। भाई सलाम। वालेकुम सलाम, की हाल है पुत्र? राजी है? लो जी, अब्बा जी नूं मिलण दे दो फायदे ने। क्या? जब भी पैदी और मालिश भी हो जाती। गड्डी बाहर रुकी, देख आ गए ने मेरे दोस्त सारे। ਆ ਗਏ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਰੱਕ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਸਰ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। माशाल्लाह काफी लोग ने। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर जी, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ मैं ठीक ठाक। की हाल चाल? जनाब मुबारक होन। ओ राणा करामत साहब। ये कौन है भाई? ओ पुराना दोस्त लंगोटी है। हराम है जी, मैंने जानता हूं। बैठो सर, तुसी देखो, दसो मैनू की प्रोग्रेस है? मैं हल्के च गया सा जी, अच्छा। इतने 4 बंदे मिकी मिले। हाँ हाँ। मैं किन्नी के हैं? तुसी मैं जनाब सारियां बाजियां वाली दुकानां ते गया, उन्होंने मैंने तसल्ली कराई है कि वोट असीं अपनी कौम नहीं देना है। जारी गल ना हाँ देन। लेकिन जिन्ने भी इत्थे हताई ने जनाब, उन्होंने कहा जी असीं बाबर नूं वोट नहीं देना, असीं पीटीआई नूं वोट देना है। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿਓ, 10,000 ਦੇ ਦਿਓ। वो सारा करके देख लिया बाबा जी, उन्होंने कहा फॉर सेल नहीं है। भाजी जी मैं कंपेन का स्टाइल दे रहा इस दफा। अच्छा। कोई भी कभी कैंडिडेट मैदान च आके आप गा के आप बजा के अपनी कंपेन नहीं करेगा। मैं सच्ची मुची? ਇਹ चेंज है। इमरान खान ने डीजे पिछे लवाया होंदा, मैं खुद डीजे क्या बात। और ਜਿਹੜਾ मैं कंपेन सॉन्ग तैयार किया ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सुना ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ तौबा ਦਾ मकाम हो जाओ। हाँ यार कुछ पेश करो, ये लोग जानना चाहते हैं। लो जी भाईजान, फिर ਤੁਹਾਡੇ सामने पेश कर रहे हैं मेरा पहला कंपेन सॉन्ग होएगा। की होगा? मैं कहा रिजवान जी ले आओ बेटा, आओ बैठो जी, बैठो बैठो बैठो। उस्ताद जी बाबर खाना लगवा दिया मैंने। खाना बेगम बाद च खावांगे, पहले जरा मैं एक आइटम सुना। बैठो तुसी भी आ जाओ। ओए बुलबुल किथे है? बुलबुल और बुलबुल किथे? ए आ गया जे बुलबुल। ला लेकिन ओ ना वाह वाह राणा साहब। भाई इलेक्शन च खलोते हुण सारा कुछ करना पैना। जी जी। पास रहता है दूर रहता है, वाह जी वाह। आहा। पास अल्लाह शिफा दे। तो बाजी मैं कुकड़ी करारे कर रही हूँ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁਕੜੀ ਆਂਡਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ना कर, तेनू बड़ी बारी क्या है। क्योंकि पास रहता है दूर रहता है,
कोई दिल में जरूर रहता है। पास रहता इमरान खान ते मेरे एक चीज मुश्तरक है, क्या? साढ़े दोवां दे साथी बहुत माठे ने। हाय हाय पास रहता है दूर रहता है। पास रहता है दूर रहता है, कोई खांसी में शराबूर रहता वाह 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 वाह। रहता है गल ते एडी कोई नहीं जिन्ना वक्त पास रहता है दूर रहता है, कोई दिल में जरूर रहता है। वाह जी वाह। जब से देखा है उनकी आंखों में हल्का हल्का सरूर रहता है। क्योंकि भला क्यों? क्योंकि दिल लगी, हाय दिल लगी, दिल लगी में ऐसी दिल को लगी कि दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल हो गया। निदा पामा गामा करे था, दिल लगी में ऐसी दिल को लगी कि दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया। ओ बातों बातों में ऐसी बढ़ गई बात रे, पुलिस ने देखो मुझको मारी कैसी लात रे। बातों बातों में ऐसी बढ़ गई बात रे, पुलिस ने देखो कैसी मारी मुझे लात रे। पुलिस ने पुलिस तेंज मार दी है जिवें कोई सवाब दा कम में, पुलिस तेंज मार दी है जिवें गरीब आदमी दी कमेटी मारी दी है, पुलिस तेंज मार दी है जिवें किसी दा हक मारी दा है, पुलिस तेंज मार दी है जिवें तू खच्चा मारने। बातों बातों में ऐसी बन गई बात रे, पुलिस ने देखो कैसी मारी मुझे लात रे। छतरौल मेरी इन्नी होई मैं उथे ही रो पिया, रो पिया, वो किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल हो गया। दिल रो गया, दिल लगी में ऐसी दिल को लगी कि दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया। शेर अर्ज कीता है मैं फिर अर्जदार तू हरकतां करना पिया। तुसी देखो साडी कैसी कोई पहचाने, उत्ते लिख राणा थल्ले ढोलकी निशाने। साडी कैसी कोई पहचाने, उत्ते लिख राणा थल्ले ढोलकी निशाने। ते वोटां मंगण गया ते उथों आटा हो गया। वाह 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 वाह। हो गया किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल हो गया। आटा हो गया, दिल लगी में ऐसी दिल को लगी कि दिल खो गया, हाय दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल हो गया। ओ पीडीएम के रंग में डाल गया भंग वो, पीडीएम के रंग में डाल गया भंग वो, बिना किसी हेल्प के जीत गया जंग वो, बिना किसी हेल्प के जीत गया जंग वो। एक अकेला सारी टीम को धो गया, बाजी अल्लाह हो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, 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 ये दिल हो गया। ओए देखो कैसा ना हाथ ला के डिगा। ये दिल हो गया, ये दिल हो गया, ये दिल हो गया, ये दिल हो गया, मर जाएगा वो। ये दिल हो गया,
तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं पेट्रियन एक्सक्लूसिव क्लब के हवाले से खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन पेट्रन्स का जिनकी सरपरस्ती के सबब हमने खासी स्ट्रेंथ गेन की है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इसी अंदाज से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मैं साथ ये रिक्वेस्ट भी करूँगा उन दोस्तों से कि जो फ़िलहाल सोच रहे हैं वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सक्लूसिव क्लब की मेंबरशिप हासिल करें। वेलकम बैक। वो दिनों रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज का मुल्क मलेशिया। मलेशिया। मलेशिया का नाम मलेशिया जी, मलेशिया उसी को कहते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया का इंतहाई अहम मुल्क है, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे कीजिए कि इसे आज़ाद हुए बहुत कम अरसा हुआ, और उसका जीडीपी देखें, उसकी तरक्की देखें, वो लगता है कि 200 साल पुराना तरक्की याफ्ता मुल्क है। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 57 में हुआ, आपसे 10 साल एक पहले। दहाई बाद, एक डेकेड बाद। वो 15 अरब रुपया तो वो सिर्फ आप जैसों से बटोरता है हर साल। टूरिज्म के नाम। नो, पाम ऑलिव। ओह 15 अरब डॉलर्स, नॉट रुपया, 15 अरब डॉलर्स सिर्फ पाम ऑलिव। और हम 3 अरब, 3.5 अरब, 4 अरब, समटाइम्स 5 अरब किस चीज़ पे खपा दिया कि जी पाम ऑलिव इंपोर्ट किया है, क्योंकि हमारे यहाँ घी नहीं, ऑयल नहीं बनता उसके बगैर। तो मत खाओ वो घी, मत खाओ वो ऑयल, कोई और चीज़ दरियाफ्त कर लो। यहाँ पर बादशाहत है जी। और डेमोक्रेटिक मुल्क है, बादशाहत भी मौजूद है, और बादशाहत रोटेट करती है। इसके 13 सूबे हैं, और इसी हवाले से जो इलाकाई तौर पे जो ख़ानदान है उनके चश्मो चिराग आपस में, उनकी एक 5-5 साल के लिए बारियां लगी हुई होती हैं। वाह। जैसे हमारे यहाँ जमहूरियत के बैनर तले बारियां लगी होती हैं ना, कि भी इस दफ़ा तुम, नेक्स्ट टाइम मैं, फिर तुम, फिर मैं, और उसके बाद फिर तुम, और उसके बाद ऑब्वियसली फिर मैं। अगर ये कोई तीसरा आ गया फिर तो फिर उसका वही अशर होता है जो आजकल हो रहा है। अच्छा जनाब, ये समुद्री सरहदें भी इसकी हैं और बर्री भी। बर्री सरहदें इसकी मिलती हैं थाईलैंड के साथ, इंडोनेशिया के साथ, ब्रुनाई दारुस्सलाम के साथ, और अदरवाइज इसकी बहरी सरहदें सिंगापुर, वियतनाम एंड फिलीपींस। फिलीपींस को द फिलीपींस कहते हैं। हेग एक शहर है, आपको यकीनन पता होगा, हॉलैंड का, उसको भी द नेदरलैंड्स कहते हैं। द यूके। द यूके, यूके के साथ तो द लगेगा, वो तो द यूनाइटेड किंगडम। यूएस के साथ द लगेगा, जी द हाँ, यूएस, द यूएसए नहीं होगा। ये गलती ना किया करें, आई कम फ्रॉम द यूएसए, आई कम फ्रॉम द यूएस। वो बहुत ओल्ड फैशन है, जिस तरह यूएनओ बड़ा ओल्ड फैशन। वो तो खत्म हो गया है, उसका ऑफिशियल नेम इज नाउ यूनाइटेड नेशंस। नहीं ऐसी है, द गाजियाबाद भी कह सकते हैं। द बागड़ियां, द बागड़ियां, द लाहौर, वो पश्तो वाला कह सकते हैं, द लॉर्ड दा। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾ नहीं लगता, वो दा लगता। अच्छा जी, सन 57 में जैसे मैंने बताया इसको आज़ादी मिली। किससे? बरतानिया से। 31 अगस्त, बल्कि इसी महीने के जो महीना हम पाकिस्तान की आज़ादी समझा करते हैं। आए समझा कर। वाह। अच्छा जी, पाम ऑलिव की एक्सपोर्ट के हवाले से मलेशिया दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। वाह। और पहला? इंडोनेशिया। ਸਾਰੇ ਰਕਬੇ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿ ਵੱਡਾ? बहुत छोटा, मामूली सा है। ਫਿਰ 13-14 सूबे ਉਹਦੇ। 13 सूबे पाकिस्तान के भी ज्यादा होने चाहिए। पाकिस्तान के सूबे छोटे कर दो, आधे मसाइल इसी में हल हो जाएंगे। अच्छा सर, हर मुल्क को कोई ना कोई नंबर दिया गया है कि फलां चीज़ में अच्छा है, फलां चीज़। हमारा मुल्क भी किसी नंबर पे है, नंबर 1 पे किसी मामले में। ओवरऑल बहुत नीचे है, लेकिन बेस्ट ऑफ द लॉट जब आप पिक करते हैं ना, बेस्ट ऑफ द लॉट, पिक ऑफ द लॉट, उसमें पाकिस्तानियों का बहुत कम होगा कोई सानी। बेहतरीन है, बहुत थोड़े हैं, लेकिन बहुत शानदार है। फिर चैरिटी में, खैरात में, फिलैंथ्रोपी में, फिर पाकिस्तान लैंड ऑफ द स्पोर्ट्समैन हुआ करता था। हॉकी की टीम मैदान में उतरती थी, पाकिस्तानियों की, इंडियंस की वक्त पड़ जाता था। लेकिन सत्यानाश। क्रिकेट में भी पता नहीं इत्तेफाक ऐसा है कि हम
फिर से, वरना किसी और चीज में रेजिलियंस हम में है कोई नहीं, लेकिन है क्रिकेट खेलते हैं हम। स्नूकर में जीत जीत के आते हैं बेचारे, बाहर निकल के टैक्सी रोक रहे होते हैं, यार हमने घर पहुंचना है, ये रक्षे ते आਉਂਦੇ वापस रिक्शों पे वापस आते हैं वर्ल्ड कप जीत के। और रक्षे वाला भी नहीं पछाण ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਝੰਡਾ ਵੇਖੇ ਪਾਕਿस्तान में ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਓਏ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ। एथलीट्स अपना खर्चा खुद, वो पहलवान नहीं बता रहा था मैं भट्ट साहब, हाँ जी, नू भट्ट के पता नहीं किस मुश्किल के साथ अपने आप को मैं अफोर्ड करता हूँ आपके लिए, ये जो जीता है मैंने, और जिस तरीके उसकी वो जर्क मुझे याद है, उस जर्क ने पाकिस्तान को कई 100 फुट ऊपर उठा दिया था। कोई सरपरस्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपका एक बड़ा मशहूर साइकिलिस्ट जी, वो बेचारा रोल के फौत हो गया, ही वॉज फ्रॉम सियालकोट, और रिक्शे के दरवाजों पे उसने अपने मेडल्स लगाए। यार इधर आ जाओ, वापस आ जाओ। दफीन के टाइम एक जिहा बंदा बोली जा रहा एंड ते मुर्दा भी कहना भाजी मेरे लिए भी दुआ करना। अच्छा जी, एक दिलचस्प फैक्ट है मलेशिया के बारे में, लोग आमतौर पे या तो सरफे नज़र कर जाते हैं या पता ही नहीं। 1965 में पाकिस्तान ने अपने सफारती ताल्लुकात मलेशिया के साथ ख़त्म कर लिए थे। क्यों? भुट्टो साहब जज्बाती आदमी थे, तो गुस्से में जोश में आके कोई मशवरा देने इवन ये करना कि जाओ वो पोलैंड की करारदाद फाड़ के आ जाना, ये भी गलत था। भुट्टो साहब जैसे जीरक डिप्लोमेट को, स्टेट्समैन को, इफ एट ऑल ही वाज अ स्टेट्समैन, तो उसको जेब नहीं देता। मतलब बीबी होती ना, मैं आपको दावे से कहता हूं कि बीबी वाज अ 10 times better person and a better diplomat than her father. और ये कश्मीर के ऊपर डिफरेंसेस की वजह से हुआ था। Yes. और 11 महीने बाद ईरान की इंटरवेंशन से फिर ये सुलह हुई। भुट्टो साहब ने कहा कि जी कश्मीर पर मलेशिया ने हमें वो सपोर्ट फराहम नहीं की। वो क्या सपोर्ट फराहम करता उस वक्त, देखो तो सही, उसके अपने मसाइल कितने थे। एथनिक राइट्स वहां पे शुरू हो चुकी थी, ये भूमिपुत्रा के उन्वान से झगड़े, लड़ाइयाँ, मामलात चल रहे थे। इकोनॉमी भी अभी कुछ ऐसी नहीं थी। फिर बहुत उसके ऊपर असर था इंडियन कल्चर का। अच्छा जी, कुआलालंपुर इसका कैपिटल है, और दूसरा एक अहम शहर है पुत्राजाया। कुछ ऑफिसेस गवर्नमेंट के वहां पे भी हैं बिकॉज ऑफ कंजेस्शन की वजह से शिफ्टिंग का प्रोसेस। इनका प्लान तो ये था कि कैपिटल ही शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन फिर वो मामला बीच में रह गया। लेकिन मेजर ऑफिसेस एक एक करके, दो दो करके वहां से मूव कर रहे हैं। और पुत्राजाया का मतलब है विक्टोरियस मैन। सर वहाँ जबान कौन सी बोली जाती? माले। तो ये तो इंग्लिश का इस्तेमाल भी है, माले। माले के ऊपर संस्कृत का, हिंदी का, जैसे पुत्रा जाया जी, पुत्रा जाया, भूमि पुत्रा, के सारे संस्कृत है। वजह तस्मिया दिलचस्प है कि तामिल जबान का लफ्ज है मलाओ। देखे ना, तामिल का बड़ा असर है। तामिल मलाओ, मलाओ का मतलब है पहाड़ों में घिरा हुआ मुल्क। मशाहीर तिनको अब्दुल रहमान टाइटल, बाबा कौम, वो बाबा कौम है वहां का। तिनको अब्दुल रहमान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फिर वो OIC के सेक्रेटरी जनरल भी रहे। इनके 44 बहन भाई थे। एक माँ बाप से। नहीं एक माँ, ये शाही खानदान से थे ना। शाही खानदान को तो सब कुछ माफ होता है। शाही खानदान कोई लत्ती चढ़ी नहीं। ये एक और अहम शख्सियत वहां की, महातिर मोहम्मद। 24 साल वजीर आजम रहे, लॉन्गेस्ट सर्विंग। और वो तो बाबाए कौम थे ना जी, मलेशियन, द फादर ऑफ द नेशन। ये फादर ऑफ द राइजिंग नेशन, जिसको आप एशियन टाइगर कहते हैं ना, अगर ये बंदा ना होता तो शायद मामलात ऐसे ना होते। अच्छा जी, दातो मिशेल, ये एक्ट्रेस है वहां की, बड़ी मशहूर। इसने एक जेम्स बॉन्ड की फिल्म में भी काम कर रखा है, टुमारो नेवर डाइज में। जिमी चू, जिमी चू, फैशन वाला जिमी चू, मतलब ब्रांड है। इनके वालदैन जो है ना, उनका एक मकाम था शू मेकिंग में, लेदर स्टफ में बड़ा, और लंदन जाके तो इन्होंने वक्त डाल दिया था। मकामात जी, ये बात, पेट्रोनास ट्विन टावर्स, बड़े मशहूर ट्विन टावर्स। ये 1483 फुट इनकी बुलंदी है। ये दुनिया की टॉप 10-12 जो इमारतें उनमें से एक है। अभी वैसे उन्होंने एक और बिल्डिंग बनाई है, मर्डेका 1118। वो इससे ऊंची है, वो इससे ऊंची है। इट इज द सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा के बाद उसका नंबर आता है। वाह। और उसकी हाइट है 2227 फुट। लेकिन यार ये टावर जो है ना,
ये इंतहाई हसीन टावर, और बाहर से तो कुछ भी नहीं है, जो अंदर से है वाह वाह, बुर्ज अल खलीफा ना सिर्फ टॉलेस्ट है बल्कि मोस्ट ब्यूटीफुल भी है, एस्थेटिकली डिजाइंड है। मैं समझ सऊदिया 1 किलोमीटर लंबा बना रहा है। ਯਾਰ ਇੰਜ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨੂੰ ਕਰਤਾ क़यामत की निशानियों में से एक ये है, अरब के बद्दू एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे ऊंची इमारतों ऊंची इमारतों में। सारे मतलब किनिया मंजिला बुर्ज दियां? तकरीबन 2723 फुट बुलंदी है, और टॉप से नीचे का जो इफ्तारी टाइम है वो डिफरेंट होता जाहिर बात है सर। है, ऊपर और है नीचे और है। उत्ते जल्दी खुल जाता है। नहीं नहीं, ऊपर देर से खुलता है, ऊपर तो आपको सूरज नजर आता रहेगा, तो आपकी 10 मिनट का फर्क आता है। ਅੰਦਰ कमरे होटल स्नूकर बिलियर्ड पिया सारा कुछ यार आप इसमें नहीं गए थे? सीएन CN टावर टावर नहीं गए थे ना सर। ऐसी थल्ले ਸਾਰੀ ਖਜਮ ਹੈ ਛਿਲੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਪਾੜਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ। अच्छा जी, बातू केव्स, एक ही भाजी ये लाइमस्टोन की केव्स हैं, व्हाइट कलर की। वाइट कलर की, और बहुत हसीन मंजर है ये। वाह। अच्छा जी, स्केप पेनांग, हैं? स्केप पेनांग ये थीम पार्क है, कुछ 44-45 एकड़ के ऊपर मुहित है ये, और ये जो थ्रिलिंग गेम्स हैं यहाँ पर दुनिया के तवील तरीन ये जो स्लाइड्स हैं ना, वाह। उनमें से एक बहुत तवील वाटर स्लाइड। वाटर स्लाइड्स बड़ी लाजवाब जो है। फिर सफारी, वाह। ये जंगल के अंदर से गुजरती है ये वाटर स्लाइड। कुआलालंपुर बर्ड पार्क, हाँ यार, परिंदियां दा पार्क। यहाँ पर हसीन परिंदे लाजवाब, अगर आप बर्ड वॉचर हैं। और तो और इसके करीब एक बटरफ्लाई पार्क भी है, हाँ। दैट इज प्रोबेबली यूनिक। अच्छा जी, खाबे मी गोरंग मामक, ये नूडल्स हैं। यार सीधा सेवियां छोड़ा ना होना चाहिए, नी बस नूडल। हाँ खो अगर सेवियां ने। इसमें आप श्रिम्प्स डाल सकते हैं, सब्जियां डाल सकते हैं, इसमें आप चिकन जो कुछ भी, बीफ भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, नासी लेमाक, नासी का मतलब है चावल। चावलों में क्या? वहाँ के खानों में चावल बहुत ज्यादा है। थाईलैंड की ऑलमोस्ट 90% डिशेस में नासी, ये गैर एलानिया कौमी डिश है वहाँ की, यार लाना नासी लेमाक, मतलब जिसको कहा नहीं जाता लेकिन एक्चुअली समझा जाता है। जैसे आपके यहाँ बिरयानी और पुलाव होते हैं ना। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋਂ ਚੌਲ ਨੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। यार चौल और मसरा दा... क्यों जी? यार नहीं, तुम मसरा दी दाल की शान में ना बाकायदा लिटरली तुमने गुस्ताखी की। दालों की ਅਸੀਂ बड़ी कदर की है। दाल और मसल चावल, चावल के ऊपर एक कोट करें आप मक्खन का, गरम गरम स्टीमिंग बॉइल्ड व्हाइट राइस, उसके ऊपर बड़े सारे चम्मच 2-3, और मेरी आमतौर पे दाल या मसर खत्म हो जाते थे, चावल नहीं खत्म, मैं सेंटर में एक पूल बना लेता कि वो साइडों पे वो रहे। नागी ने भी सेंटर च पूल बना के छाल मारती था। ਇਹਨੂੰ ਖੰਗ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। वो कहते ਹੋਤਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। नासी लेमाक, आप चावल लें ले ले ले। और मांगे, और पता है बॉयल किस में करें? सारे तेजाब च करने, पानी च करने हो। यखनी में, दूध में, कोकोनट मिल्क। मिल्क में। अच्छा जी, फिर उबला हुआ अंडा डालें इसमें। वाह। एक गरीब जिहा मुल्क है मेरा, उबला हुआ भी अंडा, मतलब कोई दर्जन अंडियां दी ले तो ले। यार एक ही बात है, आप अंडे ज्यादा डाल लें। ये बकरे दे नाल वो ते लड़ाई होण लग पई। 15 अरब ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਘਿਓ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। अच्छा जी, फिर इसमें झींगा डालें, झींगा। झींगा मुश्ती, ओ झींगा ओए किसे झींगा मुश्ती के बच्चे। अच्छा जी, ओटाक, ओटाक, लो जी एक को पटाखे ला दो। ये समुद्री मछली प्याज मसाले वगैरह लगा के इसको केले के पत्ते में लपेटें। जो जो लागे उन्होंने चीज़ां ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਕੋ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਥੋਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਥੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਲਾ लिया, उथों मछली पकड़ ली। यार उनको अपनी की आइटम है माहौल बस। तो ये उसमें आमतौर पे फिर बारबेक्यू करते हैं, और जब पत्ते का रंग ब्लैक हो जाता है फिर उन्हें छोड़ देते कोई अंदाजा। अच्छा ये एक चीज है, मैंने तलाश किया कि आप मटन कर रहे हैं, वहां पे मटन कढ़ाई की एक किस्म है। अच्छा जी।
और वो सिर्फ त्योहारों पे होती है। क्यों जी आम दिन में नहीं। ਇਹ 12 ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੌਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੁਬੁਰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਦੇ ਨੇ अरे बकरा 2 घंटे डांस करता है। इसको कहते हैं रैंडैंग। वो बिचोई के कहते रेंड एंड बकरा दौड़ जाता है। 3 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ किस बात पे? ਉਹਦੇ ਦੌੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਕਰਾ ਦੌੜ ਕੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦਾੜਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ? इसमें बहरहाल वो कोकोनट मिल्क डालते हैं। ਯਾਰ ਕੋਕੋਨਟ ਮਿਲਕ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਕੋਨਟ ਮਿਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਪੀਏ ਕਿੱਡੀ ਤੁਮ ਤਰਾਕ ਨਾ ਉਹ ਕੋਕੋਨਟ ਮਿਲਕ ਪਾਮ ਆਇਲ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾਤੀਰ ਮਵਨ ਨੂੰ ਹਸਮੁਖ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬੱਦੀ ਹੋਏ ਨਾ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ तो तीनों हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि सांप खाते पुलिस एहलकारों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अगे थोड़े जरीले ने। कहाँ के पुलिस एहलकार? राजनपुर, ये कच्चे के इलाके में, ये डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ़ कार थे जी। और चूँकि एसएसजी के ट्रेंड हैं, उनका कि हमें तरीके ये सिखाए जाते हैं कि आपको, क्योंकि प्रोटीन्स का बहुत बड़ा सोर्स है सांप। जी। तो जिस तरह उसने छिलाई करके खाल उतारी, बिल्कुल मछली की तरह होता है, फिर अंदर मसाला लगाया, उसका लेमू निचोड़ा, बड़ा मज़े ले लेके खाया था। कहते कि उसकी सिरी काट ली जाए तो फिर जहर खत्म हो सिरी भी काट ली जाए, दुम का हिस्सा भी काट लिया जाए, बीच में जो होता है वही खाया जाता है। अमेरिका में रैटल स्नेक बड़ा महंगा और बड़ा शौकिया डिश है वहाँ की, साउथ वेस्ट में ख़ास तौर पे, एरिजोना, यूटा, न्यू मैक्सिको, निवाडा। नहीं तो सर ये जो इन्होंने खाया ये मजबूरी के तहत खाया या शौकिया? नहीं, मजबूरी के तहत भी, कि उस वक्त नहीं होगा ना, प्रोटीन्स नहीं मिल रही होंगी वहाँ पे। सर ये शौकिया भी खाया जाता है? शौकिया भी खाते हैं लोग, बड़ा बड़ा सी स्नेक्स, वाटर स्नेक्स जो हैं, ये सूप में इस्तेमाल होते हैं। चाइनीज़ बड़े मशहूर हैं, वो तो रैट स्नेक भी, चाइनीज तो खैर कुछ छोड़ते ही नहीं। वो तो कुछ भी खा लेते हैं। उनके लिए तो चीज़ हरकत करनी चाहिए, मूव करनी चाहिए। ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਤਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਪ चाइनीज़ था? ਨਹੀਂ 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 ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਤਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਪ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 4 ਸੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਸੱਪ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈਂਦਾ सांप बड़ी खौफनाक चीज़ है, एफ्रोडेजियक के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और बड़े बड़े इसके वो हैं, लेकिन प्रोटीन्स के उसूल के लिए बहुत रेयर होता है कि आपको बिल्कुल कुछ ना मिल रहा हो, ठीक है, फिर उस वक्त चलता है। अदरवाइज सांप इज जस्ट लाइक अ फिश। अगर आप टिड्डी खा सकते हैं, मतलब लोकस्ट जो है ये बड़ी लजीज है, बड़े ज़ौक़ शौक से खाई जाती है, ये पूरा सब्ज़ा खा लेती है जी। और लोग फिर इसको खाते हैं सब्ज़े के तौर पे। बहुत डिलिशियस बनती है और बड़ी क्रंची होती है। लेकिन सर सांप को क्यों नहीं खाते? सांप को इसलिए नहीं खाते कि एस्थेटिकली एक गलाजत का, कराहत, खतरनाक चीज की कराहत का एक कॉन्सेप्ट उभरता है, तो बंदा नहीं खाता। यार मैं भूखा रह लूंगा, मैं बगैर प्रोटीन्स के जिंदगी गुजार लूंगा, सांप नहीं खाऊंगा। देखा जाए तो ईल क्या है? ईल ईल सांप ही जैसी मछली है। ਜਿਹਨੂੰ ਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मली उसकी किस्म है आगे। हालांकि मली तो बहुत लजीज मछली है, मैं बहुत ज़ौक़ शौक से खाता हूँ। मली भी और सोल, रहू, चिंगारा, खग्गा, बाम को बहुत ज़्यादा नहीं, थैल अलबत्ता, थैल इज़ गुड, शीर माही इज़ गुड। सर एक मछली में बहुत ज्यादा करंट भी तो होता है। ईल में होता है, ईल में करंट मारती। एक वीडियो में दिखाया कि कुत्ते ने ना तालाब में तो उसी मछली को ऐसे चक मारा तो जोर से उसने करंट मारा, उसकी चीखें दी, उसकी चीखें आसमान तक गई होंगी। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ सर सबसे जहरीला सांप कौन सा? जहरीला डिपेंड करता है। अफ्रीका में सबसे जहरीला जो है वो ब्लैक मांबा, बहुत जहरीला, बड़ा खतरनाक सांप है, बहुत तेज सांप है। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਮਾਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੀਲਾ ਸੀ। ब्लैक मांबा, रसल्स वाइपर बड़ा ही खतरनाक है, किंग कोबरा है, रैटल स्नेक, फिर रैटल स्नेक बहुत खतरनाक बारे वाला वो पिसी रैटल स्नेक ही की किस्म है, सॉ स्केल्ड वाइपर। जी जी। और सॉ स्केल्ड वाइपर का सबसे छोटा वर्जन
हिस्सी है चकवाल की, निहायत खतरनाक, टोटल कितनी स्पीशीज हैं स्नेक्स की? लाख तादाद है, बड़ी ठीक ठाक। यहाँ पे एक बड़ा खतरनाक सांप मैंने तो गिनवाया ही नहीं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक, कौन सा? कॉमन क्रेट, सबसे ज्यादा खतरनाक। अच्छा, बड़ा अफसरा अर्गा ना है था। हाँ, नंबर 1 है वो, इसलिए कि उसका जहर स्वीट है, मीठा जहर है, वो दर्द नहीं करता आपको, इधर आराम ना फौत हो। आराम से 4 घंटे के बाद वो सिर्फ आपका नर्वस सिस्टम यूं डिस्ट्रॉय करता है जिस तरह हाइड्रोजन बॉम्ब कर। ਕੱਢਣ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਜ਼ਹਿਰ? आपको उसी वक्त पता चल जाए कि सांप है। वो मरता बंदा इसलिए कि पता नहीं चलता कि सांप कौन सा है। ये पता होना जरूरी है कि ये सांप कौन सा, किसमें है ना, न्यूरोटॉक्सिन होता है कि ये किस तरह का सांप पैरालाइज कर देता है आपका न्यूरोलॉजिकल तो सिस्टम। एक आदमी उत्तर प्रदेश में उसकी बीवी को सांप ने काटा, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमेशा उस आदमी को, इंतहाई ज़हीन आदमी था, उसने अक्लमंदी करके बज़ाहिर एक इंतहाई मखौलिया हरकत की, सांप को पहले उसने सांप को मारा और लेके हॉस्पिटल चला गया। वाह 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 वाह। उसने, सबने कहा तुम पागल तो नहीं हो, सांप को ले सिर्फ मेडल लेने के लिए कि मैंने मारा है? उसने कहा पागल के पुत्रों, ये डॉक्टर्स पहचानेंगे कि कौन सा है, इलाज कौन सा करना है, एंटीवेनम कौन सा देना है। वाह, उसी वक्त उसका इलाज हो गया। सांप के कान नहीं होते, फिर ये बीन क्यों उसके आगे भी जाते हैं? बीन का तो उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं ना। ये तो वो जो हिलता जुलता है वो बीन की मूवमेंट से हिलता है। ये कहते हैं जनाब ये देखें कैसा डांस कर रहा है, म्यूजिक दिया होता है, लहक रहा है उसके ऊपर, ऐसा तमाशबीन सांप। ਬਚਪਨ ਚ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੀਨ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਲਾ ਤੇਰੀ ਬੀਨ ਵੀ ਥੱਥੀ। कुछ लोग पालते भी हैं, तो पालना हो तो कौन सा सांप? सांप पालने के लिए नहीं बना, आपका लेकिन कुछ लोग पालते हैं। मेरे कुछ लोग तो क्या कजन का पेट रहा है रैट स्नेक, हाँ, तो बड़े प्यार मोहब्बत से उसको रखा है उसने। ये अपने अपने ज़ौक, अपने मिलान की बात है। अगर किसी ने पालना है तो क्रोकोडाइल भी पाले होते हैं लोगों ने। और ये जो था साउथ का पाब्लो एस्कोबार, एस्कोबार ने हाइनाज रखे हुए थे, उसने हिप्पोज रखे हुए थे, ये उसके फेवरेट थे। फिर लोगों ने सलमेंडर रखी होती है, गिला मॉन्स्टर, उसका नाम है गिला मॉन्स्टर। वो इतनी खतरनाक छिपकली होती है कि उसके पास से तो कुत्ता नहीं गुजरता, उसके टच से उड़ा देती है वो, इतनी जहरीली होती है। लोग पालते हैं। आपने कभी सांप पाला है? ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣ ਨੇ ਅੰਡੀ ਮੰਗਾਈ। Continuous Raat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। Continuous रात आज का गाना हमने फिल्म लाखों में एक से लिया है। निसार बज़मी की बहुत शानदार कंपोजिशन और बहुत खूबसूरत लिरिक्स तनवीर नकवी के, गाया मलका तरन्नुम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से, वरना तेरे बिना बेरंग थे दिन रात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। से हुए नैन मिले, आई मिलने की घड़ी तर से हुए नैन मिले, तेरी क्या बात है तू जब भी मिले चैन मिले, हो मुझे चैन मिले, रहे संग संग तेरी खुशियों की बारात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। अपने चरणों में सदा रखना मुझे
के तेरे वास्ते हैं गीत मेरे, हो पिया गीत मेरे। बस यूं ही होती रहे प्यार की बरसात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। सामने तू जो रहे गम भी है मंजूर मुझे, सामने तू जो रहे गम भी है मंजूर मुझे। तुझको उल्फत की कसम करना नहीं दूर मुझे, हो कभी दूर मुझे। मेरे जीवन की खुशी अब है तेरे साथ पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। वरना तेरे बिना बेरंग थे दिन रात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। ब्रावो ब्रावो।